शरीर पर भगवा वस्ત્રો, पगमां चाखड़ी, खभा पर बाणोनो भाथो, हाथमां धनुष, चेहरा पर स्मित, आज हतु भगवान श्री रामनु वनवासी रूप। रामायणनी कथाओमां, रामचरित मानसनी चौपाईओमां श्री रामना ते रूपनी कहानी घणी वार सांभळी, पण आजे अमे तमने भगवानना ते रूपना जीवती जागती निशानीओ बतावीशुं। આજે અમારી ટીમ તે સફર પર છે જ્યાં ભગવાન શ્રી રામના વનવાસી રૂપના નિશાન હજુ પણ જોવા મળી રહ્યા છે। તે જગ્યા જ્યાં અયોધ્યા બાદ ભગવાન શ્રી રામે પ્રથમ પગલું મૂક્યું, જ્યાં કેવટ રાજ સાથે મુલાકાતના ચિહ્નો જોવા મળી રહ્યા છે। તે ધામ જ્યાં ભગવાન રામે વનવાસનો સૌથી લાંબો સમય વિતાવ્યો, તે પંચવટી ત્યાંની કુટીર, તે લક્ષ્મણ રેખા, આજે ભગવાન શ્રી રામની તે કહાનીઓ તસવીર બનીને તમારી સામે હશે। અમે શોધીને લાવ્યા છીએ તે ચમત્કારિક કુંડ, પણ જ્યાં ભગવાન રામની ગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે મુલાકાત થઈ હતી। આજે જઈએ ભગવાન રામની વનવાસ યાત્રાના સાક્ષી બનવા, ભગવાનના તે રૂપને મળવા જેના વિશે પહેલા સાંભળ્યું ઘણું બધું પણ ક્યારેય જોયું નહીં। આજે અમે લઈને આવ્યા છીએ કહાની રાજા રામ રૂપની, શ્રીરામની રાજગાદીની, ભગવાનના દરબારની। જઈએ એવી જગ્યાએ કે જ્યાં રાજા રામને છે 6 વાર સલામી આપવામાં આવી, જ્યાં જ્યોતિ રૂપમાં રાજા રામ આજે પણ સાક્ષાત જોવા મળે છે। શ્રી રામની વનવાસ યાત્રા। રામાયણનો સૌથી મોટો ભાગ, ભગવાન રામની લીલાનો સૌથી મોટો ભાગ, કેટલી જગ્યા, કેટલી કથાઓ, ચિત્રકૂટનો તે કિનારો જ્યાં ભગવાન રામે સૌથી વધુ સમય વિતાવ્યો, દંડકારણ્યનું તે ગાઢ જંગલ જ્યાં રામે રાક્ષસોના અત્યાચારને જોયો, પંચવટીનું તપોવન જ્યાં ભગવાન રામે તપ કરીને કેટલી અદ્ભુત શક્તિઓ મેળવી, શ્રી રામના વનવાસી રૂપની દરેક કહાની, કહાની સાથે જોડાયેલી દરેક નિશાની આજે તમારી સામે હશે, જે શોધવા માટે અમારી ટીમે ઘણી મહેનત કરવી પડી, કેટલાય મહિના જંગલોમાં વિતાવવા પડ્યા। આજે તે બધા સાક્ષ્ય તમારી સામે હશે। ભગવાન રામની આ કહાની પણ ત્યાંથી શરૂ થાય છે જેવી રીતે રામાયણમાં શરૂ થઈ હતી, પ્રયાગરાજના શૃંગવેરપુરથી। श्रृंगवेरपुर की कोई अगर पहचान है तो वो ये मूर्ति है। अब आपको धनुष और बाण देख के लग रहा होगा कि भगवान राम की मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ति है निषाद राज की। निषाद राज यानी कि मल्लाहों के राजा, और इस जगह के बारे में यही फेमस है, यही इसकी मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ से भगवान राम ने गंगा जी को क्रॉस करके प्रयाग की तरफ गए थे अपने सन्यासी रूप में। लेकिन यहाँ पर एक रात गुजारी थी और उनकी मुलाकात हुई थी इनसे, निषाद राज से, यानी कि मल्लाहों के राजा से।
રામાયણ મુજબ ભગવાન રામ જ્યારે વનવાસ માટે નીકળ્યા ત્યારે રથ પર સવાર થઈને ગંગા તટે પહોંચ્યા હતા. કહેવાય છે કે ગંગા નદીનો આ કિનારો જ્યાં યુગો પહેલા ભગવાન રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ સાથે આવ્યા હતા, જેની ચોપાઈ આજે પણ સંભળાવવામાં આવે છે. सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँची जाई. જો કે શૃંગવેરપુરનો અયોધ્યાથી આનાથી પણ જૂનો સંબંધ છે. તે સમયથી જ્યારે ભગવાન રામનો જન્મ પણ નહોતો થયો, જ્યારે રાજા દશરથ અહીં પહેલીવાર એક ખાસ ઉદ્દેશ સાથે આવ્યા હતા. ये जो मेरे पीछे आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये अभी तो एक मंदिर है, लेकिन ये कभी श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था. और मान्यता यही है कि भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उनको यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने ही कराया था और उसके बाद ही उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई. तो एक तरह से रामायण की नींव जो है वो अयोध्या में नहीं, यहाँ श्रीवेंकपुर में रखी गई थी. આજે શૃંગવેરપુરમાં ગંગા નદીનો તટ શ્રીરામના રંગે રંગાયેલો છે, જે આ જગ્યાની રામકથાને વ્યક્ત કરે છે, જેમાં સૌથી મહત્વના 2 પાત્રો છે, જેમાં પ્રથમ નામ છે મલાહોના રાજા નિષાદરાજ. નિષાદરાજ અને રામ વચ્ચે બાળપણની મિત્રતા હતી. જ્યારે ભગવાન શ્રીરામ શૃંગવેરપુર આવ્યા હતા ત્યારે વર્ષો પછી આ તટ પર પોતાના નિષાદરાજને મળ્યા હતા. तरे राम देव सरी देखी कीन दंडवत हर्ष विषय की. गंगा मैया को उन्होंने दंडवत किया और बड़े खुशी से कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंगा तरंगा. महारानी गंगा जी के तरंग को देख करके कोटि प्रसंग गंगा जी को सुना रहे हैं. तो यहाँ पे क्या इसी किनारे पे? नहीं, इस साइड में है वो सिंगवेरपुर. सिंगवेरपुर घाट. वहाँ से गुहराज निषाद जी आए और वो बचपना में उनका ननिहाल था अयोध्या में. भगवान श्री राम को पहचान. રામાયણમાં લખ્યું છે કે અયોધ્યાથી નીકળ્યા બાદ શ્રી રામે વનવાસની પ્રથમ રાત શૃંગવેરપુરમાં ગુજારી હતી. પણ તે જગ્યા કોઈ મહેલ નહીં, પણ એક બગીચો હતો. गुहराज सोचने लगे कि इनको रात्रि निवास करवाऊं कहाँ. तो इस रामचौरा घाट में उनकी फुलवारी थी. गुहराज की. अच्छा, गृहराज की फुलवारी फुलवारी थी. थी. गुहराज निषाद वो यहीं पर है अभी? यहीं पर है, मौजूद है अभी. अच्छा. માન્યતા મુજબ આ જગ્યા પર ભગવાન રામે ઘરથી દૂર વનવાસની પ્રથમ રાત્રિ વિતાવી હતી. આજે અહીં વૃક્ષોને તેવી રીતે જ સાચવીને રાખવામાં આવ્યા છે જેવો રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે. श्रृंगवेरपुर में राम चौरा में यही वो स्पॉट है, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर राम जी ने एक पूरी रात गुजारी थी. अब आप खुद इमेजिन करिए, त्रेता युग, हजारों साल पहले की बात, और आज भी ये स्पॉट अपने जगह पर मौजूद है. इसको मार्क करके रखा गया है. तो ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, 4 पेड़ यहाँ पर थे, वो चारों पेड़ उसी तरह से आज तक प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त में मौजूद थे. ये पेड़, शीशम के पेड़, यहाँ पर और वहां पर चारों पेड़ आज भी उसी तरह से प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे. આ વૃક્ષો નવા છે, મંદિર નવું છે, અહીંનું દરેક ભવન, દરેક નિર્માણ નવું છે. પણ રામકથા અને તેની સાથે જોડાયેલા સાક્ષ્ય તે કહે છે કે ભગવાન શ્રી રામ અહીં રોકાયા હતા. जब ये स्थान पर प्रभु आते हैं तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है कि लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहे व राम सब भांत सुहावा. हर भांत से प्रभु को अच्छा लगता है. कहे बा सखा बड़े अच्छे स्थान बुलाए. સવાર થતા જ ભગવાન શ્રી રામને ગંગા નદી પાર કરતા ચિત્રકૂટ જવાનું હતું. જરૂર હતી એક મલ્લાહની. ત્યારે ભગવાન રામની મુલાકાત થાય છે એક કેવટ સાથે. આ ગંગા નદીના કિનારે કેવટે તેમના ચરણો ધોયા હતા.
प्रभु ने किसी भक्त को किसी धाम में आज्ञा नहीं दिया कि मेरा चरण धो लो, लेकिन सिंगबेरपुर में केवट का प्रभु ने स्वयं आज्ञा दिया है। तो केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी ले आवा। केवट प्रभु को जो आज्ञा पाया तुरंत कठौता में पानी भर के आ गया। केवट प्रभु की भक्ति में खोया, केवट प्रभु की भक्ति में खोया, भगवान भक्त के प्रेम में खोए। ये पद जिसके हाथ लगे उसे भाग्य पे काहे गर्व ना होए। त्रेता युग में भगवान राम कुछ इसी तरह से इस नदी पर से गुजरे होंगे जब सन्यास लेने के लिए 14 साल के अपने वनवास के लिए वो यहाँ से निकले थे। तो अपने आप में ये कितनी शॉकिंग चीज़ है कि सदियों पहले, हजारों साल पहले जो कुछ गुजरा उसको आज भी आप इस मोमेंट में रिलीव कर सकते हैं, दोबारा उस पूरी चीज़ को जी सकते हैं। ગંગા નદીને પાર કરીને ભગવાન શ્રી રામ ચિત્રકૂટ ચાલ્યા ગયા, પણ રામકથા સાથે જોડાયેલી એક નિશાની આજે પણ શૃંગવેરપુરમાં છે। આ સ્મારક પુરાતત્વ વિભાગને ખોદકામ દરમિયાન મળ્યું। ઈંટોનો ઉપયોગ જોઈને લાગે છે કે આ રામાયણના સમયનું નથી। કહેવાય છે કે આ જગ્યાનો સંબંધ કોઈ સમયે નિષાદ રાજના મહેલ સાથે જરૂર રહ્યો હશે। श्रृंगवेरपुर में अभी तक जो आपने देखा वो मान्यताओं पर आधारित था, लेकिन अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें एएसआई ने खुद खोद के निकाला है। अब आपको मेरे चारों तरफ ये सिस्टर्न, ये टैंक दिखाई दे रहा होगा जो पानी स्टोर करने के लिए काम में आता था। अब सोचिए, ये एएसआई ने निकाला है और एएसआई का मानना है कि ये निषाद राज के जमाने का है, यानी अब से हजारों साल पहले यहाँ पर कोई राजमहल था, उस राजमहल में ये इतना शानदार वाटर सिस्टम था और इस तरह के सैकड़ों चीजें हैं। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं जो आसपास बनी हुई हैं। ये सारी चीजें निषाद राज के जमाने से, मतलब त्रेता युग में हजारों साल पहले यहाँ पर राजमहल था, यहाँ पर इस तरह के वाटर सिस्टम्स थे जहाँ पर पानी प्योरीफाई किया जाता था और पूरी नगर, पूरे शहर यहाँ पर बसे हुए थे। આના પરથી એટલું તો જરૂર સાબિત થાય છે કે શૃંગવેરપુરનો સંબંધ ત્રેતા યુગ સાથે છે। અહીંના ઘાટ પર રામકથા ચોપાઈ બનીને ગૂંજે છે। અમને પણ આ જ સવાલ થયો કે ભગવાન રામની મૂર્તિ મંદિરમાં નહીં પણ મહેલમાં કેમ સ્થાપિત કરવામાં આવી। અમે જ્યારે આ અંગે પૂછપરછ કરી તો ખબર પડી તેની પાછળ હતી ભગવાન રામની 3 શરત। શું હતી આ શરત? ચાલો જોઈએ। પ્રભુ રામના સન્યાસી રૂપની નિશાનીની શોધમાં અમારે મધ્યપ્રદેશના પન્ના જવાનું હતું। જ્યાં રામાયણની એક નાની કહાની સાથે જોડાયેલો મોટો સાક્ષ્ય છે, જ્યાં ભગવાન રામે ભક્તિનો પહેલો પાઠ ભણ્યો। જ્યાંનો ચમત્કાર આજે પણ લોકોને ચોંકાવે છે। बागनी नदी का ये झरना है और इस झरने को बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है ये, और मान्यता ये है कि भगवान राम ने यहाँ पर ऋषि बृहस्पति जो गुरु हैं देवों के,
उनसे मुलाकात की थी। तो ये पूरा इलाका जो है आज हम अलग अलग स्टेट्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर आश्रम थे और जहाँ पर राक्षस थे। तो भगवान राम का यहाँ पर सन्यासी रूप भी दिखता है और भगवान राम का योद्धा रूप भी दिखता है। दोनों रूप आपको दिखाएंगे इसी जगह में आसपास, दोनों रूप यहाँ पर आपको भगवान राम के दिखाई देंगे। માન્યતા મુજબ આ જગ્યા પર ગુરુ બૃહસ્પતિની ભગવાન રામ સાથે મુલાકાત થઈ હતી, જેમણે રામને શિવ ભક્તિના ગુણ શીખવાડ્યા. જેનું સાક્ષ્ય છે તે શિવલિંગ જેને પ્રભુ રામે પોતાના હાથે સ્થાપિત કર્યું હતું. बृहस्पति कुंड में है और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि जाने पर जान का खतरा हो सकता है, कृपया कुंड में ना जाएं। और जो मैंने सुना है अभी तक वो यही कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उस कुंड में पहुँचने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरे वाला है, बहुत छोटा रास्ता है और वहाँ से गुजर के जाना होता है उस कुंड तक पहुँचने के लिए। पानी की आवाज़ आपको यहाँ से सुनाई दे रही होगी। अभी हम करीबन कुछ नहीं तो किलोमीटर दूर हैं और पानी इतना ज़्यादा तेज़ है कि पानी की आवाज़ अभी से सुनाई दे रही है। आइए चलते हैं। આ ઝરણું નીચે એક કુંડમાં પડે છે, જ્યાં ભગવાન રામ અને ગુરુ બૃહસ્પતિ મળ્યા હતા. તે પહેલા શિવલિંગ મળશે. जब परमात्मा श्री राम 14 वर्ष वनवास काल में आए और चित्रकूट में समय बिताने के बाद जब उन्होंने चित्रकूट के बाद की यात्रा शुरू की, उस समय वो यहाँ पर इस स्थान पर आए. ये गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की तपस्थली रही है. गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और चूँकि अपन वैदिक संस्कृति में देखें, सौरमंडल की स्थिति में भी देखें तो गुरु देवताओं में बुद्धि के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं और प्रेरणा के देवता हैं. આ વિસ્તાર ઊંચાણવાળા વિસ્તારમાં છે. અહીંથી જંગલના દરેક ખૂણા પર નજર રાખી શકાય છે. આ જગ્યાનો એક અલગ જ રોમાંચ છે. जब आप इस इलाके में आते हैं, ये पूरा वन क्षेत्र है. अब आज के ज़माने में भी मतलब अभी इस वक्त भी ये जंगल है, चलना फिरना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है. एक लंबा रास्ता पैदल आपको चलना पड़ रहा है. तो आप सोचते हैं कि उस वक्त किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जब भगवान राम इस इलाके से गुजरे होंगे. અહીં ભગવાન રામે કેટલાય દિવસો સુધી સાધના કરી હતી, જ્યાં ગુફામાં એક શિવલિંગ છે. क्या है ये शिवलिंग दिख ये रहा है? शिवलिंग भगवान राम के वनवास के समय का प्रभु द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है. अच्छा, इतना पुराना शिवलिंग है. मतलब ये भगवान राम जब यहाँ पर आए थे जी तब उन्होंने स्थापित किया था. और तब से यहीं पर है? यहीं पर है. इनके प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी मिलते हैं. अच्छा, प्रभु श्री राम का आगमन और जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने इसकी खोज की है राम वनगमन की, हाँ. उसमें ये 53 नंबर का स्थान है. अच्छा, और ये भगवान राम के द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है. हाँ. और इसमें यदि बहुत अपन बारीक से देखे, इसमें सर्प भी बना हुआ है. दूरदर्शी से समझ में नहीं आता है, लेकिन बारीक में देखे पूरा सर्प का आकार है. આ જગ્યાએ એક ગુફા જ છે જેને લોકોએ હવે મંદિરમાં ફેરવી છે. દાવા મુજબ યુગો પહેલા ભગવાન રામે અહીં સાધના કરી હતી, જેનો પુરાવો છે આ નાના રામકુંડનો ચમત્કાર. सर का दावा है कि यहाँ पर पानी का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा. क्या है सर, बताइए. बिल्कुल सर, ये जब मैंने जैसे आप प्रतिमा के बारे में बताया, ये राम के द्वारा प्रस्तावित प्रतिमा ठीक है, है. हो गया. इनको चढ़ाने के लिए जल, हाँ. इस गुफा के द्वारा ही जल लेकर के प्रभु श्री राम ने इनको चढ़ाया. अच्छा, ऐसा उल्लेख बताते बड़े बड़े संत, काल्पनिक संतों द्वारा ये कथा बताई गई है. हाँ. और ये जल देखिए, आप देखने में लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर जल होगा, लेकिन आप अभी डब्बे लाइए, यदि चमत्कार की बात आप करते हैं, 100 लीटर पानी भी आप निकालिए तो समाप्त नहीं है. ये मेरी उंगली आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखी है. ये मैं इसमें डालता हूँ. इतना गहरा है, ये देखा है, यहाँ तक सिर्फ इतना गहरा है और 1 बाय 1 मीटर की इसकी चौड़ाई लंबाई होगी
और इनका दावा है कि आप 100 लीटर पानी भी यहाँ से निकाल लेंगे तो पानी खत्म नहीं सर मैं दावे की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी डब्बा मंगाइए, बाकेट मंगाइए और इस पे आप 100 लीटर पानी डालिए, यदि खत्म हो जाए तो गारंटी इस बात। લોકોને વિશ્વાસ અપાવવા માટે દાવાની પડતાલ જરૂરી હતી. કુંડમાંથી પાણી નીકાળતા ગયા, ફેંકતા ગયા, નીકાળતા ગયા, ફેંકતા ગયા, પણ પાણી જેમનું તેમ. बीस बाल्टियां पिछले आधे घंटे में मैं फेंक चुका हूँ। पानी तो 1 इंच भी नहीं हिला है, लेकिन मैं बेइंतहा थक गया हूँ। अब इस बाल्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं इसके अंदर 8-10 लीटर पानी तो आराम से 8 लीटर तो आता ही होगा। मतलब अभी तक मैं करीबन 80 लीटर पानी बाहर फेंक चुका हूँ और पानी वहाँ पर एक रत्ती भी 1 मिलीमीटर भी जो है वो कम नहीं हुआ। કુંડ નાનો હતો, મુશ્કેલીથી 6-7 લીટર પાણી આવતું હતું. જો ઝરણાથી પાણી આવતું હોય તો પણ જળસ્તર થોડું તો ઓછું થવું જોઈએ. ये तो हिल नहीं रहा है, पानी वहीं का वहीं है। नहीं हिलेगा सर, पूरा ये दिन बिल्कुल फेंकिए। मतलब जितना पानी था, जितना मैंने अभी नापा था कुछ देर पहले, उतना ही का उतना ही पानी है। मतलब आधे घंटे से हम लोग लगातार बाल्टियां भर रहे हैं, ले आके डाल रहा हूँ, लेकिन पानी टच से मस नहीं हुआ है, कोई इनग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अमूमन होता है पानी टपक रहा होता है, कुंड भर रहा होता है, यहाँ पानी अंदर आने का कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा इशारा नहीं नजर आ रहा है कि वहाँ से कहीं से पानी अंदर आ रहा हो। और उसके बावजूद भी लगातार पानी निकाल रहे हैं, इस तरह से बाल्टियां हम लगातार भर रहे हैं और तब भी पानी वहीं का वहीं। આ જ કારણે આ કુંડને લોકો રામકુંડ કહે છે, જ્યાંનું શિવલિંગ અને કુંડ બંને અદ્ભુત છે. જ્યાંથી અમે તે કુંડ તરફ પ્રયાણ કર્યું, જેનો સંબંધ રામ અને ગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે છે. પણ આ વિશાળ ઝરણાની નીચે જવું પડકારજનક હતું. तंग रास्ता, चिकने पत्थर और ऊपर से बारिश, मतलब सारी मुसीबतें जो एक साथ हो सकती थी ना इस रास्ते में, वो हमको मिल गई हैं। एक भी कदम अगर मेरा गलत पड़ गया ना तो पैर तो टूटेगा ही और यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। વરસાદને કારણે પથ્થર પરથી પગ લપસી રહ્યો હતો. पूरी टीम के लिए, मतलब ये तो इलाके के लोग हैं और इनके लिए भी अब मुश्किल हो गया है। हमारे लिए तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है एक एक कदम आगे बढ़ना। થોડીવાર પછી અમે કુંડ પાસે હતા, જ્યાં એક પળ માટે પણ અમે ઊભા રહી શકીએ તેમ નહોતા. झरना बहता है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कैमरा निकालना इम्पॉसिबल है। मेरी आवाज पता नहीं अब तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज इतनी ज्यादा है कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल इतना तेज वेग है इस झरने का, आप पानी महसूस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि 1 सेकंड भी यहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे तो पूरी तरह से तरबतर। શૃંગવીરપુર હોય કે પન્ના, જ્યાં જ્યાં ભગવાન રામના ચરણ પડ્યા ત્યાંથી ભગવાન રામની કથાની ધારા વહે છે. અહીંનો દરેક પથ્થર ભગવાન રામના વનવાસી રૂપનો સાક્ષી છે. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.